ایران سے میرے سامنے بچی میں نے بولو نماز سے بولے نماز قائم کرو. جملہ دینے لگی کون فالوور ہے امام کے ماننے والی ہے. نماز قائم شمانہ بجی وہی قائم کرے گا نماز جس کے دل میں قائم کی محبت ہو, جس کے دل میں معرفت امام زمانہ ہوگی, جس کے دل میں شگفتہ محمد آل محمد کی محبت ہوگی, وہی نماز قائم کرتا ہے. اللہ نے ادا نہیں کہا, پڑھنے کا حکم نہیں کہا, فرمایا نماز قائم کرو. قائم ہی جانتا ہے نماز کو قائم کیسے کیا جاتا ہے. درود پڑھنے میں کہ امام زمانہ کی شان کو بلند کرا. بی بابا سے بلند صلوات. اسی سورت بقرہ کی آیت نمبر 238 میں اللہ نے اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی. وسط سے نکلا ہے وسطی. وقوموا للہ قانتین. صلوات. خبردار رہو سب نمازوں سے. 5 ہی نمازیں ہیں. پھر فرمایا بیچ والی نماز سے. فجر کو الگ کر دو, ظہر کو الگ کر دو, مغرب عشاء کو الگ کر دو. بیچ والی نماز ہے عصر کی نماز. یہی وہ نماز ہے جو حسین نے بچائی ہے. یہی وہ نماز ہے جو سجدہ کرتا رہا, سبحان ربی الاعلیٰ بلند کرتا رہا, کلمات بلند کر کے فرماتا رہا اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. پیر لگے حسین نماز نہیں چھوڑے گا. ہاتھ کھول کے بولو سبحان اللہ الحمدللہ. میرے ساتھ پڑھتی ہیں مالک دعائیں قبول فرمائیں گے. دل ہے کہ آج میں ٹاپک نماز کا پڑھوں. اگر سارے نمازی بیٹھے ہو, اگر سارے حسین کی دل ہے کہ میں نماز پڑھوں, آپ کے ساتھ مل کے جیسے سجاد نے بتائی تکبیر, سارے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسالت, نعرہ حیدری, بلندتر صلوات. علی کے آنے سے پہلے عبادت کا مزاج ہی کچھ اور تھا. چاند کی پوجا, سورج کی پوجا, ستاروں کی پوجا, سیاروں کی پوجا, اللہ جانے کس کس کی پوجا, گائے کی پوجا. علی بادشاہ جب دنیا میں آئے ہیں عبادت کے سارے راستے توڑ کے وہی بتایا جو اللہ نے بتایا ہے. انہوں نے سورج کی پوجا کی, سرکار نے سورج پلٹا کے بتایا یہ اللہ نہیں وہ اللہ ہے جو وحدہ اس نے سورج بنایا. انہوں نے کہا یہ علی تو اللہ والے کام کر رہا ہے. نصیری نے کہا علی خدا تو نہیں. سرکار نے سجدہ کر کے دکھایا میں نہیں, وہی وحدہ لا شریک ہے, وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. سانپ کی پوجا کرنے لگے, جس سے ڈر لگتا تھا اسی کی پوجا. علی نے جھولے میں اژدہا کے ٹکڑے کر کے کائنات کو دکھایا یہ رب نہیں, رب وہ ہے جو کوئی اللہ احد ہے, اللہ الصمد ہے, جو لم یلد ہے. نماز دین کا ستون ہے. بولو میرے ساتھ مل کے نماز دین کا ستون. آنٹی بولیے گا میرے ساتھ, نماز دین کا ستون ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. زبان سے بولیے. نماز بے حیائی سے روکتی ہے, نماز برے کاموں سے بچاتی ہے, نماز شیطان سے محفوظ رکھتی ہے. اب بولنا جو پیچھے رہ گئے, نماز حسین سے ملاتی ہے, نماز اکبر سے ملاتی ہے, نماز عباس سے ملاتی ہے. فارسی زبان کا لفظ ہے نماز, عربی میں کہتے ہیں صلاۃ. نماز کہتے ہیں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا, رب کے آگے جھکنا. میں نے کہا مالک اللہ تو نے کہا نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. نماز بھی کہا, زکوٰۃ بھی کہا. نماز بھی کہا ڈائریکٹ آیت کے ساتھ, زکوٰۃ بھی کہہ دیا. شیعہ کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت ہی نہیں کوئی زکوٰۃ پڑھ کے بتا دے. وہی زکوٰۃ ہے جو علی نے اتار کے فقیر کے ہاتھ میں رکھ کے دنیا کو بتایا. سجدہ بھی نہیں ٹوٹا, نماز بھی نہیں ٹوٹی, زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی. اللہ کا قرآن بھی سچا.
कहानी बिखर गई होती, मचा गया इस सजदा हुसैन का वरना नमाज असर से पहले ही मर गई होती। नारे हैदरी, हुजूर इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात। और शायरी मेरा दिल होता है मैं थोड़ा कम पढ़ूँ, मैं ज़्यादा आयात का तर्जुमा उसकी तफसीर करूँ। है हुक्म किबरिया की अताअत नमाज में, आती अल्लाह बात रसूल छेड़ा है तो छोड़ना नहीं है हुक्म किबरिया की अताअत नमाज में, वो वाजिब है बंदगी की रवायत नमाज में, सजदे में है रसूल तो है पुश्त में हुसैन, दोनों की हो रही है इबादत नमाज में। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी, मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। दीन का सतून है, जन्नत की कुंजी है, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका हुसैन से कोई रिलेशन नहीं। मकसद करबला क्या है, मकसद अज़ादारी क्या है, घर से निकलने का मकसद क्या था, यही नमाज बचाना, शरीयत बचाना। हुसैनियत को बचाया है ज़ैनब ने, हुसैन ने नाना का ताज बचाया। तो मौला ने नमाज कज़ा नहीं की और इमामत में नमाज कज़ा होने का कोई असूल बनता ही नहीं है। इमाम होता ही वही है जिसकी नमाज कज़ा न हो, जिसकी इबादत मुकम्मल हो। जब कह दिया कि इबादत मुकम्मल ही अली के जरिए से होगी, पढ़ने लगी हूँ आंटी जी मैं नमाज शुरू करने लगी हूँ, अभी मैं सिर्फ चेक कर रही थी कौन मेरे साथ हम कलाम रहेगा। इतना सुकून आएगा जब अल्लाह से बात करेंगे, जब अल्लाह से कलाम करेंगे। नमाज रब से मिलने का जरिया है, नमाज अल्लाह से मिलने का जरिया है। हर नमाजी बोले जो हुसैन वारिस है, जिसका हुसैन बादशाह हमेशा वारिस है, वो बोले हुसैन कल भी जिंदाबाद है, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, हुसैन हमेशा जिंदाबाद है। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, आज भी मुर्दाबाद है, हमेशा मुर्दाबाद रहेगा। जिंदाबाद, 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 यज़ीदियत मुर्दाबाद, यज़ीदियत मुर्दाबाद, यज़ीदियत मुर्दाबाद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत नमाज क्या है? पढ़ते हैं तो ध्यान अजीब अजीब ख्यालात आते हैं मुसल्ले पे। कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, काम करना है, शौहर को खाना देना है, फलां मेहंदी पे जाना है, फलां बारात पे जाना है, ये सूट पहनना है, ये कर पढ़ नमाज ले। और अक्सर देखा बस मैं 2 मिनट में नमाज पढ़ी, 2 फर्ज पढ़ के आई, किसके बारगाह में खड़े होना है? तवज्जो है सबकी? वो कौन है जो वादा तौहीद की पहचान करवाने की कोशिश करूंगी, हक अदा हो जाए, मालिक दुआ कबूल करे? वो है कौन? जिसके मानने वाली है वो जानती है वो कौन है। सजदों से साबित हो गया सल्लल्लाहुल मसीह है, ज़ैनुल आबिदीन है, सैयदुस साजिदीन है। गठरे पड़ जाते हैं सरकार, फिर कटवाते हैं, फिर कटवाते हैं, फिर कटवाते हैं। सजदों की जीनत भी सज्जाद है, ज़ैनुल आबिदीन भी सज्जाद है, सैयदुस साजिदीन भी सज्जाद है। सैयद कहते हैं सरदार को, सज्जाद कहते हैं सजदा करने वाले को। अब गौर कर, सजदा आदम भी करे तो सरदार सज्जाद है। उसके जुमला था, चलो जहाँ तक उम्मीद है सारे बोलना, मिलके बोलना, नमाज पढ़ना। सरदार से पूछा मौला जब वज़ू करते हैं तो आप रोते हैं? इमाम सज्जाद फरमाते हैं बेशक मैं रोता हूँ, मैं जिसके दरबार में खड़े होने जा रहा हूँ वो रहीम है। बोलो जुबान से, अल्लाह ने जुबान अपनी इबादत के लिए दी है, दुनियादारी के लिए दी। वो करीम है, वो ज़ुलजलाल वल इकराम है, वो उम्मीदों का काबा है। फिर मौला आप क्यों रोते हैं? आप तो इमाम हैं, आपके पास तो जन्नत की कुंजियां हैं। बंदा नमाज पढ़ता है जन्नत के लिए, रोजा रखता है जन्नत के लिए, हज अदा करता है जन्नत के लिए, ज़कात देता है जन्नत के लिए। ये सब कुछ अल्लाह ने आपको पहले दे दिया। इमाम फरमाते हैं खबरदार, दे दिया तो वापस भी ले सकता है।
وہ رحیم اور کریم ہے، لیکن قہار اور جبار ہے، انل متکبر ہے، انل خالق ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دیتا ہے تو لے نہیں سکتا۔ میں نماز پڑھ کے وضو کرتا ہوں اور وضو کر کے نماز ادا کرتا ہوں، ضرورت نہیں ہے کہ میں وضو کروں، کیونکہ ہم انما یرید اللہ لیذہبا ہیں، ہمیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں، ہم دنیا کو سکھاتے ہیں، ہم دنیا کے لیے پہچان ہے توحید کی، ہم دنیا کو طریقہ سلیقہ بتاتے ہیں، اس لیے وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ میرا طریقہ بندوں کو سمجھ آئے، جب امام رو کے رب کے آگے نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیونکہ 2 منٹ میں نماز پڑھ کے آئی، آج نہیں پڑھتی کل پڑھوں گی، میرے کپڑے خراب ہیں، آج تک اپنے ذہن میں سوال کا جواب مجھے دیتی رہنا، کوئی ڈریس ایسا ہے جو نماز کے لیے بناؤ؟ شادی برات ولیمے کی اب بھی لٹکے ہوئے ہیں الماریوں میں، نماز کا کوئی ڈریس بنا ہی نہیں ہے جو ہم نے پہن کے نماز پڑھنی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک کنیزان زینب کہتی ہو چادر بنواؤ، اس چادر میں لپٹ کر اگر بندھے ہاتھوں میں زینب محمل میں بیٹھ کر قضا نہیں کرتے، تو کون ہوتی ہے کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے، میں نہیں پڑھ سکتی، میرے کپڑے خراب ہیں؟ امام فرما رہے ہیں یاد رکھنا، نماز اللہ سے ملنے کا ایک بہانہ ہے۔ امام سے پوچھا مولا کائنات امیر المومنین سے، لوگوں نے کہا مولا آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ اللہ سے بات بھی کرتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں جب نماز پڑھتا ہوں میں اللہ سے بات کرتا ہوں، جب قرآن پڑھتا ہوں اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اللہ مجھ سے ہاتھ اونچے مل کے بولو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، دل کا سکون ہے نماز، اللہ کی عبادت ہے نماز۔ نماز علی اکبر نے پڑھی، نماز فاطمہ زہرا نے پڑھی، نماز علمدار عباس نے پڑھی، نماز بی بی کی جوڑی پڑھ کے پھر شہید ہوئی۔ مقصد ہے نماز۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو تو کر لیا، امام کے فرمان کے مطابق رو گڑ گڑا کے خضوع کے ساتھ اس طرح نماز ادا کرو کہ ہم اس کے آگے اپنے آپ کو گرفتاری دے رہے ہیں کہ مالک ارسٹ کر سکتا ہے تب بھی تو، چھوڑ سکتا ہے تب بھی تو، پکڑ سکتا ہے تب بھی تو، لقوہ فالج اٹیک کر دے تب بھی تو، ہر بیماری و مشکل کا حل تو ہی تو، مالک جب ہر جگہ ہے ہی تو، پھر دنیا سے کیا تقاضا، پھر دنیا کی کیا ضرورت؟ تو کہتا ہے کہ جو مجھے مانتا ہے یقیناً یاد رکھو دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے، وہی اللہ والا کہلاتا ہے۔ اللہ والا بھی وہی بنتا ہے جس کے دل میں حسین ابن علی نماز ادا کرنے لگی۔ تہجد کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہے، عصر مغرب عشاء کی نماز ہے، مصلی جو بچھ گیا، بندے کے ذہن میں مالک تیری آگے عبادت کر رہی ہے، میری بندگی تکبیر الاحرام سے شروع ہو گئی نماز۔ توجہ ہے سر؟ ماشاءاللہ۔ کیا کہا اس نے؟ بندی آگے رکھ کے بارگاہ میں انہوں نے کہا میں نے تجھے بنایا، میں نے تجھے پیدا کیا دنیا میں، 1 سال نماز فرض نہیں کی، 2 سال نماز فرض نہیں کی، 3 سال نماز فرض نہیں کی، 4 سال نماز فرض نہیں کی، کھاتی رہے پیتی رہے دوڑتی رہے بھاگتی رہے، رزق کھا رہی ہے میرا، لیکن میں نے نہیں تجھے کچھ کہا۔ آج اگر تو آ گئی ہے رب کی نماز پڑھنے کے لیے تو کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر، بلند آواز سے بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، بلند بولیے گا اللہ اکبر، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بندی نے کہا اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا کون ہے تو؟ تجھے کس نے بتایا؟ میں اللہ اکبر ہوں، میں بلند ہوں، میں بزرگ ہوں، میں برتر ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، مجھے جانتی ہے میں کون ہوں۔ پڑھوں نماز اور تو بول نہ سکے، حق ادا نہ کرے ہو نہیں سکتا۔ بندی کھڑی ہے رب کے بارگاہ میں، ہینڈز اپ ہے، ہاتھ بلند ہے، سو نبی
यहीं पे, चांदी भी यहीं पे, औलाद भी यहीं पे, मालो सर भी यहीं पे, सारे रिश्ते यहीं पे हैं। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर दी। मालिक तेरे दरबार में मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ने कहा जानती है मैं कौन हूँ? इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तू आलमीन का, बुलंद बोले आलमीन का, ऊंचा बोले आलमीन का। नमाज पढ़ रहे हो ना, आलमीन का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। मौला की शान में बुलंद तर सलवात। आलमीन का रब है। जानती हो मेरी ताकत का अंदाजा कि मैं कौन हूँ? बंदी ने बड़ा मालिक यौमुद्दीन, बोलो आशिक के दिन का मालिक है। नमाज पढ़ जाए सुकून मिलेगा। जो 2 मिनट वाली नमाज है वो 2 घंटों में ना तब्दील हो जाए तो फिर मेंबर पर आई क्यों? देखो तो सही, राब्ता किसके साथ है, कलाम किसके साथ कर रहे हो, बात किसके आगे कर रही हो? मालिक तू हाशिर के दिन का मालिक है। मेरी ताकत का तुझे अंदाजा, बेशक तू हाशिर के दिन का मालिक है। अल्लाह ने फरमाया चलो ठीक है, पता चल गया हाशिर के दिन का मालिक है। चाहती क्या है मुझसे? इसने कहा या का नाबुदु वैया का, बोलो अल्लाह से बात कर रहे हो, वैया का तेरी इबादत करना चाहती हूँ, तुझी से मदद मांगना चाहती हूँ। अब सवाल करती हूँ, जवाब दे। इबादत तो पहले भी हो रही है, वजू से शुरू हो गई, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज की नियत कर ली, इबादत ही हो रही है ना। मुंह बैतुल्लाह की तरफ करके तूने मुसल्ला बिछा के नमाज शुरू कर दी, ये इबादत है। मदद कैसी चाहती है? अल्लाह से तवज्जो करना, तेरी इबादत करना चाहती हूँ, तुझसे मदद चाहती हूँ। और मैं क्या चाहती है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सच्चों का रास्ता दिखा। मालिक अल्लाह सच्चा तो तू है, रास्ता तो मैंने देख लिया, फिर भी नमाज में इहदिना सिरातल मुस्तकीम और भी कोई सच्चे हैं, ऐलान करके फरमा दिए मुझे अली का रास्ता दिखा, मुझे अब्बास का रास्ता दिखा, मुझे हुसैन का रास्ता। सारे बोलो हाथ ऊंचे मिलके, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अली का रास्ता दिखा, वो सच्चों का रास्ता है। इसके सदके नमाज भी कबूल होगी। वजह है सच्ची। माशाअल्लाह। अल्लाह ने कहा जानती है वो किसका रास्ता है? और मैं बेशक सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इन पर तेरी नेमत बोलिए नाज़िल होती है, उनका रास्ता। मेरी इधर उधर तो नहीं जाएगी। तूने जो कहा मुझे सच्चों का रास्ता चाहिए, अगर मैं तुझे वहाँ भेज दूँ फिर इधर उधर तो नहीं जाएगी। झांक वाले ने कहा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, वो गुमराहों का रास्ता है, वो शैतान और यजीद का रास्ता है। मालिक नहीं जाऊंगी, इसने कहा नहीं जाऊंगी। खुदा ने फरमाया अच्छा, बहुत ही अच्छा रहा, ताल्लुक चाहे थोड़ी देर ही है, बहुत अच्छा लग रहा है अगर तू दरबार में आ गई। अब और क्या मांगना चाहती है? गुफ्तगू सुन रहा है रब्बुल आलमीन, नहीं पता किसके कानों से, वो समीउल अलीम है, लेकिन पता नहीं किसके कानों से सुनता है। तू ही जानती है, मैं भी जानती हूँ। ज़हन में रखना और हम अदा करना। इसलिए तो सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, तू अजीम है मौला, तू करीम है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू वहदहु ला शरीक है। कहती है सुभान रब्बियल आला, बुलंद बोलना, सुभान रब्बियल आला, तेरी जात बुलंद तो बरतर है। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, सोच रही है तू भी और मैं भी देख रहा हूँ कि मेरे दरबार में आके हाजिरी दे रही है। फिर कहता हूँ एक बार दोबारा सोच ले, मैंने अली का रास्ता और फातिमा का अगर दिखा दिया, इधर उधर मुंह तो नहीं करेगी, इधर उधर तो नहीं जाएगी, इनको छोड़ के दुनिया की लज्जतों में तो नहीं पड़ेगी। इसने फिर नमाज में प्रॉमिस किया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, मालिक मैं कहीं नहीं जाती, तेरी बंदगी कर रही हूँ, तू ही
में बैठे हो। जब इसने कहा अली से मिलाने वाला, अल्लाह ने कहा बता फिर तेरा अकीदा क्या है, तू चाहती क्या है। ये तशahhud में बैठ के कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ना, नमाज पढ़ रहे हो, वहदहु ला शरीक तू है। अल्लाह ने कहा मेरा तुझे किसने बताया। इसने कहा अशहदु अन्ना मोहम्मद, बोलो बुलंद आवाज से बोलो, जिसे आता है पढ़ना बुलंद आवाज से बोलना, मोहम्मद ने मुझे बताया कि अल्लाह वहदहु ला शरीक। मोहम्मद का तुम्हें किसने बताया। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व कातिलुल मुशरिकीन, मुझे अली ने बताया मेरा आका मोहम्मद है। अली ने बताया, हाँ तुझे अली का नाम आए मिलके सारे हैदरी हैदरी। और अली की शान में बुलंद तर सलावत। मुझे अली ने बताया मोहम्मद मेरा आका है। अल्लाह अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। या अली। अली ने बताया वो मोहम्मद है। नमाज रहमतुल लिल आलमीन, दोनों जहानों के लिए नमाज पढ़ के उठिएगा। जो भी अगर उठना चाहे वो रहमतुल लिल आलमीन, आलमीन का रब है। पढ़े हुए नमाज सारे। अली ने फरमाया अच्छा अकीदा तो बड़ा मजबूत है, फिर भी मैं दुआ कबूल तब करता हूँ जब वसीला हो। फिर कुरान कहता है रब की बारगाह में वसीला तलाश करो और सच्चों के साथ हो जाओ। इतना लंबा सफर करके आई है ये बीबी, वजू से शुरू हुई, नमाज पढ़ती हुई, अकीदा बताती हुई, एंड पे आके कह दिया तब दुआ कबूल करूंगा जब कोई वसीला होगा। बीबी परेशान नहीं हुई, घबराई नहीं, पता था जो मोहम्मद ने नमाज बताई है वही पढ़ती हूँ, जो सैयदा ने बताई है वही पढ़ती हूँ, जो अली ने बताई है वही पढ़ती हूँ। मालिक क्या फरमाया आपने, अल्लाह ने फरमाया वसीला तलाश कर। आप उठाई तस्वीर फातिमा ज़हरा, उठा के कहती अल्लाह अकबर, तू बुलंद है, अल्हम्दुलिल्लाह, माने तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, सुभान अल्लाह, तेरी जात पाक है, तेरी जात मुबर्रा व मुनज़्ज़ा है, तेरी जात अफजल वाला है, मालिक तू रहीम है। जब बंदी ने ये वसीला भेजा वो हिजाब किबरिया था, रात को हया आया ये फातिमा ज़हरा का नाम ले रही है। आज से गुनाह बख्शे गए, आज से दुआएं कबूल, आज से नमाजें कबूल, फातिमा के सदके दुआएं कबूल हो गई। ऐसी बीबी ने कहा फिर थैंक यू तो बनता है अल्लाह का, शुक्राना के नवाफिल तो अदा करनी चाहिए, सजदा शुक्र तो बजा लाना चाहिए। अगर सजदा शुक्र बजा नहीं लाऊंगी तो नमाज मुकम्मल नहीं। एंड पॉइंट देखिएगा मालिक ने इनाम क्या दिया है, फरमाया मालिक तेरा शुक्रिया, तूने बीबी बतूल के सदके से दुआ कबूल कर ली, नमाज कबूल कर ली। इसने कहा शुक्रन लिल्लाह, बोलो बोलो सारे बोलो शुक्र अदा कर, अल्लाह शुक्रन लिल्लाह, तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, तूने मुझे नमाज के लिए सैयदा के सदके से मेरी दुआएं कबूल कर ली। अल्लाह फरमाते मेरा शुक्रिया तो करती रहती है, मैं तो रहीम हूँ, 100 बार कर मैं फिर भी माफ कर दूंगा। सारी जिंदगी और गुनाह करे, एक रात में आके जन्नत खरीद लेता है। मैं हुसैन के वसीले, सैयदा के वसीले से माफ कर देता हूँ। मेरा शुक्रिया तो हो गया, उनका तो कर जिन्होंने इस काबिल बनाया है, इस जाए नमाज पे आने के काबिल बनाया है, जिन्होंने ये नमाज बचाई है। ये बीबी उठी, इसने कहा अच्छा मालिक उनका भी शुक्रिया अदा करूँ। अब उठ के कहती है अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रज़ा, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या सय्यदुश शुहदा, अस्सलामु अलैकुम या साहिबुल अस्र वज़ ज़मान। वारिसे दस्तार जंग, नारे हैदरी, हैदरी, मौला की शान में बुलंद तर सलवा।
तेरा मातम, तेरा पुरस्कार, तेरे नौकरियां में भी अपनी बरगाह कबूल फरमा। ज़ैनब आलिया दी मुश्किलादे करबला दा मैदान, मैं सजद जाती हूँ, मैं सदके को हाथ नहीं लगाती। सितम नसीब बलाओं को टाल देता है, मुश्किलों की तमाम हवाओं को टाल देता है। जनाब ज़ैनब आलिया ने कहा बच्चों से, सदका हर बलाओं को टाल देता है। अकबर का सदका हो, असगर का सदका हो, और मोहम्मद जड़े वेले गलियां दे विच लड़दे रहंदे इंज जगमगे करदे मातम करन वालियां ना मुहर्रम में दिंदे हक ते लड़ना, हक ते अमल करना, हक दे नाल रहना और हक इन्हां दे नाल रहे। अज़दारो इस घर की पहचान हर बंदा नहीं कर सकता, वो करता है जो दिल च दर्द है फातिमा ज़हरा दा। दोवें बच्चे लाडले ज़ैनब आलिया दे रो रो के आदन अल्लाह जाने आज मामा खांसी क्यों बदल गए। तैयारी कर जनाब ज़ैनब आलिया दे बच्चियां दा गुरसई बीबी दी नस्ल खत्म हो गई। हुसैन तेरा सज्जाद बचे सा, बल्दी आगे चुकड़ ते चालिया सा। कोई तेरा नकली होसी, कोई काज़मी होसी, कोई बुखारी होसी, कोई तिरमिज़ी होसी, ज़ैनब दा नाम लेना ला कोई ना होसी। करबला दे जंगल जग बरना सदका मैं नस्ल खत्म जग करवातम तेरा गुस्सा कबूल होवे ज़ैनब आलिया दा सदका। दोवें लालनी रो के आदन अल्लाह जाने मामा अब्बास क्यों वदे रोंदे ने। फिर फरमांदे अल्लाह जाने मामा गाजी क्यों वदे तड़पदे ने। अयो हालत है याज़दारो आदन बाबा अब्दुल्ला असा मामे तो सुने साडी मां करबला वैसे रो गया दिन जी जरूर सुने बाबा अम्मा तो बेड़े च तुर नहीं सकदे। फिर अम्मा करबला दे सफर किवें करसन रो गया दिन तेरी मां तो बिना दीन नहीं बचदा, तेरी मां तो बगैर भी इस्लाम नहीं बचदा। औखे सफर करबला दे चंद रातां दे मेहमान रह गए नहीं ओनो मोहम्मद। अज़दारो फरमाया एक 9.5 साल दिन, दूजे 10.5 साल दिन, एक दा नाम औने दूजे दा नाम मोहम्मद। रो गया दिन बाबा मामे दा जग दुश्मने, मामे हुसैन दा दुनिया दुश्मने, कल्ला दासा भी मामे नू नहीं वंजण देना। फरमाया बेटा फिर तुसी रुको, हुणे तुहाडी मां ज़ैनब आलिया हसन तुहाडी मां इजाजत दित्ती तुहानू नाल भेज देसां। तेरी ज़ने कुर्सियां लगाइयां, तख्त पलंग लगाए, सैयदा इत्थे बवो गोया दिन बीबी इत्था बवो। सैयदा रो गया दिन तख्त पलंग दे बाहर दे मौसम ठहर गए। मेरा भिरा सफरां दे बिया वेले मैं ज़ैनब भिरा दे नाल वैसा। अज़दारो जनाब सैयदा फरमाया अब्दुल्ला भरी हवेली फरमाया जेड़ी शै दिल आखने चाहो। मैं सुनिया है हुसैन अकबर दी शादी करनी है करबला। जदा धी पुत्र दी शादी दा दे रखी जावे फिर सफर नहीं करीदे। नजर लगवे दी रो गया दिन कोई सदका। फरमाया बीबी ज़ैनब आलिया में तो कोई सदका नजर नहीं आ रहा। कमर ते पिछू आनो मोहम्मद नु छुपाई खड़े अब्दुल्ला। एक हाथ चौने दूजे हाथ च मोहम्मद, सज्जे हाथ च आउन नु सामने कीता, खब्बे हाथ च मोहम्मद बीबी दी नस्ल तमाम हो गए। तू रो न सके तेरा अपना नसीब है। दूजे हाथ च मोहम्मद नु पेश कीता, रो के आते हुसैन वड्डे सदका भी वड्डा होना चाहिए। मेरी जोड़ी अली अकबर दा सदका अजरो को अल्लाह थोड़ा मातम कबूल करे छेते मातम करना लिया। मेरी जोड़ी अली अकबर दा सदका ओ मेरे करबला दे नवाब पुत्र। फरमाया अब्दुल्ला सोच लियो नस्ल खत्म हो गई ने। आदन सोच लिया पैरा ते ढह के आदन अम्मा सी कोई अकबर तो ढेर सोने। अम्मा अली अकबर दी ओ शादी होनी है करबला। अम्मा अली कासिम सेरे
बतूल दी धी दे बच्चे कैसे तरबियत केडी सोनी जी मैं नौकर मातम कबूल हुए मैं करके गुस्सा दित्ता करो लेना ब्यालिया मेरे पुत्र सदका च करिया दो चोले एक मां दी चादर हरी हवेली चू जा के आदन अब्दुल्ला बस ही उतरा चीज़ां लई वेंदियां सरकार फरमाते इंशाअल्लाह नसीब होवी चादर लुटी ना वंजे चादर बिरावा बिनाल आबाद रवि चादर बैठ करके गुस्सा दी होले ने ब्यालिया दे बच्चियां दा सदका मर गई उस वेले जदा गाजी जीर दुलते आज खैमे दे दर ते आदिल में किसे दी चादर दी मेरा बंदे नाम हाफिज गाजी जीन दुल्हन मुहर्रम कदी चढ़े विरामन तो मुश्किल बढ़ जावे तो विरामन का साथ दे ये आदती परिवार ज़ैनब आलिया वेख्या खैमे लग गए दोवें बच्चे खैमे दा पहरा मदद देते पहरा इंज देंदे सजियों वंदे यौन कबियों वंदे मोहम्मद सिरजा में मातमदार बड़ा सोना इस्तकबाल जोड़ी दा कीता ने पहला बच्चा होना दनाल हाफिज मोहम्मद आदन वाल हफीज अब्बास दी निगाह पई रो के आदन कौन हो ज़ैनब दे खैमे दे कोल आदन सी तोड़े शागिर्द अब्बास सीने दे नाल लागे फरमांदे तोड़े पहरा देवण तू सदके तोड़े पहरियां तू सदके अचानक एक ऐसी बीबी दे खैमे च आवाज आई नाम दसवां तेरे दिल च दर्द उस बीबी दा अली दी बे औलाद बीबी कुलसूम बैठ कर दिया दिन अल्लाह कोई मेरा भी हो गया शब आशूर हर मां अपने बच्चे दी तरबियत में कर ले कोई आदन बेटा सोनी जग करे कोई आदन अकबर तो पहले तुसी लह वजे कोई आदन अकबर दी जागीर दे बाहर लवे कोई आदन तीर आवे ता बाबे को ना लगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁੱਛਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੇ ਕੀਆ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਆਇਓ ਅਮਾ ਜਾਨ ਅਮਾ ਕੁਲਸੂਮ ਬੈਠ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ जोड़ी नु नाल रला के तलियां देख के हुसैन बादशाह दी भैणे उठाए इथों में कुलसूम बैठे आदन जोड़ी करीबे केड़ी कुर्बानी लैनी गई और मोहम्मद हाजिर ने रो के आदन अम्मा मैं दसो मैं आवाम तुसी क्यों तकलीफ कीती तुसी बात आयो फरमाया नहीं कुलसूम दस कुर्बानी तैयार है बीबी फरमाया वद और तुसी संभालो मोहम्मद मैं सिर ते मातम दा गुस्सा दे दिया वे मोहम्मद मैं संभाला बीबी फरमाया मैं बात अली को सुने कुर्बानी नाल प्यार करी दे कुर्बानी ते जुल्म नहीं होवण दीता कुर्बानी दी हर चीज दा ख्याल रखी दे कदी मोहम्मद दा हित लिबास कदी दूजा लिबास कदी त्रीजा लिबास मोहम्मद दिया पोशाकां में कुलसूम बैठे तब्दील कर देना आउन बादशाह नू ज़ैनब आलिया तैयार पे कर देना आदन अकबर दी जागीर दे बाहरों लवे जब तक मामा राजी ना होवे सलाम करते रवे जदन मामा राजी हो जावे मत हाथ मथे दुदले च रखे त्रीजी वसीयत बेटा पानी नु नहीं वेखना कोई ये ना आखे ज़ैनब दी जोड़ी प्यासी आई बार बार दरियाए फरात नु वेंदे आए अम्मा हुक्म दी तामील सी भला भी मातम करना लिया अम्मा हुक्म दी तामील सी अददारो जोड़ियां तैयार हो गईया अली दियां दियां वैण की ताजे मिलना और मोहम्मद नु आके मिलो आज तो बाद जिंदिया वापस नहीं बनना छोटी जी तलवार डाल देना अगर छोटी
ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਜਿੰਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਤਾਤਲ ਹਨਕ ਜ਼ੈਨਬ ਬਧਾਈ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਅਮਾਲ ਮਾਵਾ ਦੂਗੀ ਬਿਓ ਸਲਾਮੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਭਜਦੇ ਰਹੇ ਸੈਰ ਕੁਰਾਨ ਜਾਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਬੈਨ ਹਰ ਬੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਤਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇ ਸਦ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਨਸਲ ਖਤਮ ਪਈ ਹੋਈ आखिरी वेले जे मिलना यानो मोहम्मद नु आके मिलो अदानो हर बीबी हाथ दा नहीं पत्थर दा मातम शुरू कीते कोई आखिर बर्बाद मदीना कोई आखिर सोच मदीना ज़ैनब आलिया फरमाया कुलसूम मोहम्मद तैयार है जी मैं तैयार की थी खड़िया आन भी तैयार है सैयदा जोड़ी ने लाई के सेल दे संदल दे विच आ गए ना बीबियां मातम दी सदा बुलंद पे कर देना या मीटिंग करदियां ना दियां आपने मरायो हुसैन दा कबर बचायो कल दी शब आशूर कायनात दी कहदादियां ना मातम बुलंद होसी तुसा गुजारनी है और हर मां बच्चे तैयारी करनी है अदा रोज रात नु बीबी दी जोड़ी दा पुरसा जरूर अखे बीबी तोड़े बच्चियां दा अरमान बीबी नस्ल खत्म होवण दा अरमान बीबी तुसाडा फरमान है हुसैन दा पुत्र बचे अपना करबला को है दिरासा हुसैन तेरा नाम जिंदाबाद रासी अगर आलो जोड़ी तैयार हो गई खुले ज़ैनब दीवार बीबी आदे रम्मा फिजा कोई गाजी न बुलायो सिरते मातम तो गुस्सा दे दिया जदों गाजी दा नाम आया कल्ले अब्बास नहीं आए नाल हुसैन दौड़ गया दे वेख्या ता ज़ैनब जोड़ी नु कफन पाई खड़े जीतिया नु तातुल हनक बधाई खड़े अब्बास दा मामा खोल के गल दे विच आ गई रोंदे गाजी ते रो के आधे द लाग चुप गई है सिंध मातम बुलंद हुए लाग चुप गई है विच करे मल दे गए कोस सोने ने हायो लाले आज नहीं बचदे अदारो याद रखे अब्बास अलम बुलंद कीता सजावे अलम दे तल्लू शागिर्दन गुजारना शुरू कीता सैयदा फरमाए अपनियां तलवारा उस्ताद दी जुत्ती दे नाल मस करो गाजी दे कोलों दुआ लेके मैदान वजो भलावी सीने ते मातम करन वाली आलम केड़ी एक घोड़ा नहीं दो घोड़े अब्बास ले आए सचावे जेड़ी होर ताई मातम नहीं कर सकी बच्चियां दा साथ छोटा पैर रकाब ताई नहीं अपड़दे अब्बास रकाबा दे विच पैर फसाए रोने करो के आखिर पाड़े इन्ना पाड़े इन्ना लिल्ला सीने ते मातम दा गुस्सा पाड़े इन्ना लिल्ला आयो घोड़े आगे शाह भैन दे पुता रिछड़ाए हाय टोर फड़े जे अल्लाह मातम कबूल करे ज़ैनब आलिया जी मैं बात पढ़ दिया थोड़ी नौकर रोने सरकार ते रो के आधे न पाड़े इन्ना लिल्ला आयो घोड़े आगे शाह भैन दे पुता चढ़ाए हाय टोर भरे जे आज मौत दे पासे रुना शाद सदा लहाए बैठ के सा बुलंद भी हो गई रोने सरकार ते रो के आखे न मासूमारो के अर्ज कीता करो मामा साई विधवाए असा कोई नहीं मलना है हुसैन असा कोई नहीं मलना जी जी मैं न करा तेरा मातम कबूल हो गए सीने ते मातम कर डाली रोने तेरे के आधे ना असा कोई नहीं मलना असा कोई नहीं मलना
दौड़े हर बीबी बैठ करके आदन ज़ैनब आलिया तेरी जोड़ी ना अरमान अल्लाह भरा मदीना जदा बीबी लेके टुरे 28 रजब दी टुरी हुई जंग बैठे बेदे बादशाह फरमाते नौरो मोहम्मद घोड़े जंग दे करीब ले आए फौजा वेदियां 9 लाख दी फौजा दे नेता अली आ गया बड़ा बिना छोटे नु आदे या वीरों हमला किथों करना है आदे नु उठो करो जिस मेरी मां तू वतन छुड़ाया कर माता उमर साथ दे खैमे दियां तड़ियां करोड़ियां आदे पहरा साडी मां नु मजारा छुड़ावण वाला पहरा अकबर नु बरछियां मरावण वाला पहरा कासिम दी लाश ते घोड़े कासिम दी लाश ते घोड़े दौड़ावण वाला हालत केड़ी हजारों पहला हमला बीबी ज़ैनब आलिया पवे दिन खैमे दा पर्दा पिया हल गया दिन शाबाश मेरे सोने बचड़े अब्बास सिपाही करबला ते दिन मेरे शागिर्दों शाबाश हुसैन पवे दिन शाबाश मेरे भड़जे अदादारो या अल्लाह जाने कमीने ऐसा तीर उठाया सीने पे मातम दा पुरसा अकबर दी जागीर के बाहर वगे लगे कमीने तीर आन दे हाथ दे मारे हाथ जुकीर पेशानी दे विच लगा सलाम करके आता है मामा राजी जागीर दे बाहर बुलांदे नी और मोहम्मद मामा हुण राजी अदादारो केरी हालत है आउन जीद छोड़ी ज़ैनब आलिया सर ते खुदार जाई खड़े हैं आदे नल्ला जाने जोड़ी बचसी या कोई ना सिर ते मातम करन वालियां वेख्या मोहम्मद जंग पे करदे कदी सजियो बलदेर कदी खबियो बलदेर इस कमीने मोहम्मद नु जीद तू किवें लाया है इंजे लाया है जिवें अकबर नु बरछी लगी कमीने नेज़ा मारिया मोहम्मद तू जीद छोड़ गई तानिया मोहम्मद अल्लाह आ गए शाम दी मुल्का रोंदे ते केड़ा बैठ करदे तेरे पुत्र दे शहर दे विच समझदे तोड़े इतनी मिलत काले से चा तेरे पुत्र दे शहर च नहीं समझदे तोड़े इतनी ज़ैनब आलिया मातम कबूला तेरे पुत्र दे शहर हुसैन फरमाया कई हसरत दे तेरे पुत्र दे जागीर जना सोने आहर लवस आए तोड़े इतने मिलत काले से आए तेरे पुत्र दे शहर च समझदे तो